शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति से हम गुंजाए आओ धरती व्योम आओ धरती व्योम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का विकृतियों का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबार महावाक्य 20 मई 2021। आज के बाबा विशेष পাঠ করাচ্ছেন। দেহি অভিমানী স্থিতিটা আমাদের যত পাকা হবে তত আমরা নিজেকে শ্রেষ্ঠ পদে অধিকারী বানাইতে পারব। তো এই অভ্যাসটা আমাদের বিশেষভাবে করতে হবে, কেন কি আমরা এই পুরুষার্থে নিজেকে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারব। আর ভাগ্যটা বানানো আমাদের হাতে। আমাদের কপালে জানি লকির না লাগে যায়, মানে দাগ না পড়ে যায়, সেই জন্য আমাদেরকেই নিজের উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে। তো শুনি আজকে বাবার মহাবাক্যে বাবা কি বলছেন আমাদেরকে। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारी से कभी दिल नहीं लगाना है। इस पुरानी दुनिया और देहधारी से कभी दिल नहीं लगाना है। दिलटा माना निजेर অন্তরটা কখনো এই পুরনো দুনিয়ার সাথে আর এই পুরনো দেহধারীর সাথে লাগাইতে মানা করলেন। দিল লাগাই তো নসিব ফুট যায়গি। এখান যদি আপনি অন্তরটা লাগিয়ে দিলেন তো ভাগ্যটা খারাপ হয়ে যাবে। যদি আমরা অন্তরটা লাগাইতেও হয় তো নতুন দুনিয়ার সাথে,
এই পুরনো দুনিয়া তো ছাড়ে যেতে হবে, এই জন্য এই দুনিয়ার সাথে दिल लगानो जावे ना, माने अंतर लगानो जावे ना। प्रश्न, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुहिया राज सुनाया है? এই নাটকের মধ্যে আমাদের একটা খুব গোপন রহস্য আছে, সে বাবা আমাদেরকে শুনিয়েছেন। बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, এই নাটকটা খতম হবে, इसीलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना है, সবাইকে এখানে হাজির হইতে হবে, উপস্থিত হইতে হবে। सब धर्म की आत्माएं, सब ধর্মের আত্মাগুলো अभी यहाँ हाजिर होगी, এই রঙ্গমঞ্চে যত ধর্মের আত্মা আছে সবাই এখন হাজির হবে, অর্থাৎ উপস্থিত হবে। क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है, কেন হবে? কেন কি সবার বাবা, সব ধর্ম আত্মা যতগুলি আছে সবার বাবা এই সময় এই সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে আছেন। सबको बाप के आगे সালামি ভরনে আনা হি হ্যাঁ, সবাই আসবে বাবার কাছে সালামি নেওয়ার জন্য। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी, मन माना भव, মনটাকে বাবার কাছে লাগানোর মন্ত্রটা নিয়ে যাবে। वह कोई मध्या जीवा के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी, मध्या जीवा माना वर्षा, মানে বাবা থেকে যে পাওয়া বর্ষা অধিকারটা ওর জন্য ওরা কেউ আসবে, সবাই আসবে মন মানা ভব মন্ত্রটা নেওয়ার জন্য। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, আমাদের অন্তরে যে সাহারা কোনো কারণ আকারণ যেনি কি হয়, দিলের অন্তরের সাহারা যে বাবা সে কোনো কারণবশ বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, এই অ্যাটেনশনটা আমাদেরকে রাখতে হবে। ओम शांति। सब सेंटर के बच्चों ने गीत सुना, तुम आज सुन रहे हो, আমরা আজকে শুনলাম, और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। এখন তো বাবার মুরলি সুখ সুবিধা সাধন সায়েন্সের সাধন এত হয়ে গেছে যে সব এক ডেটে সব জায়গায় বাণী চলে, কিন্তু এমন সময় ছিল যে মধুবনে একটা ডেটে শোনা হইতো আর সেন্টারগুলাতে ভিন্ন ভিন্ন ডেট থাকতো। তো এই সব সুবিধা কে করলো? সায়েন্স। আজকেও আমরা বাণী শুনছি, এটাও হইল সায়েন্সের সাধন, যে বাবা বলছিলেন যে সায়েন্স দ্বারা সেবা হবে, লাস্ট সেবা কে করবে? সায়েন্সের মাধ্যম দ্বারা সেবা হবে, জন জন কাছে বাবার সন্দেশ সায়েন্স নিয়ে যাবে। তো আগে মধুবন শুনবে, তারপরে সব প্রত্যেকটা সেন্টারে যেভাবে পোস্ট পৌঁছাবে সেভাবে শুনবে। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, भाग्यटा खराब हो जाए, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है, এই আমাদের শরীরটাই হইল এই পুরনো দুনিয়ার। तो अब देही अभिमानी बनेंगे तो अपनी तकदीर जो बना रहे हैं, अगर देह अभिमान बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बना रहे हैं वह फूट पड़ेगी। যখন আমরা নিজে ভাগ্য বানাচ্ছি আর যদি আমরা দেহ অভিমান হয়ে যাই তখন কি হবে? আমাদের ভাগ্যটা খারাপ হয়ে যাবে। अब बदनसीबी से तुम नसीबदार बन रहे हो, ভাগ্যটা খারাপ ছিল তখন আমরা ভাগ্যবান হওয়ার জন্য এখানে আসছি।
इसीलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। এই দুনিয়াতে আমরা বেশি সময় থাকবো না, কিছু সময়ের আমরা মেহমান। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। এই দুনিয়াতেই আমাদেরকে पुरुषार्थ করতে হবে। बहुत है जो पवित्र रहते भी हैं, कोई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, कारण अकारण बस निजर के मने नीचे नामाय नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बाबार साथ देवार जोनो আমাদেরকে बाबा बोलें। बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बड़ो विशाल सेवा, विश्व परिवर्तन करा से मध्य बाबा के আমাদের सहयोग दीते होवे। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं सब बाप को मदद करेंगे, এমনও না কি সবাই বাবাকে सहाय करते पारबे माना मदद करते पारबे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की ब्राह्मण कुल भूषण बीके बने वही समझदार बनेंगे। যারা आगे হয়েছিল তারাই হবে। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर बीके ही कहेंगे। ब्रह्मार बच्चा तो हमरा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। যারা এখান থেকে পাস্ট হয়ে গেছে তাদেরকেও সবাই মনে করে आदि देव और आदि देवी। जो चीज होकर गई वह फिर जरूर होनी है। पास्ट हो गेलो और रिपीट होवे। यह जानते हो सतयुग होकर गया, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज था। सती जुगे जे राज छिलो से देवी देवतादेर राज्य छिलो, जो अभी नहीं है। देवी देवता जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज करते थे, वह अभी 84 जन्म की अंत में है। से देवी देवताराई 84 जन्मेर अंतिम समय आसे। अभी न पवित्र है और न वह राजाई है। पवित्रताओ नहीं और राजाई पदो नहीं। पतित बन पड़े हैं, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ। এই দুনিয়াটা পতিত। बाबा की बोलें पतिते साथे बुद्धि योग लगाइते नहीं। एक बाप को याद करो, एक बाबा के स्मरण करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबार कोथा अनुयायी चले बाबा থেকে আমি অধিকার নিচ্ছি, এরকম অনুভব আমাদেরকে করতে হবে। কেন কি বাবা থেকে আমরা নিচ্ছি। कैसे वर्षा पाना है वह भी যুক্তি बताते हैं। কিভাবে আমরা বাবা থেকে অধিকারটা নিব সেই যুক্তিগুলোও বাবা বলে দিচ্ছেন। मनुष्य तो अनेक प्रकार की जुक्तियां रचते हैं, कत धरनेर जुक्ति बेर करे। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्य की हार्ट खराब हो जाता है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर दे। नेचुरल निकाल कर आर्टिफिशियल लगा देते हैं। यह भी कितना हुनर है। हुनर माना कला। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाए। काल के यदि देह राखे देय तो प्लास्टिक सर्जरी गेलो। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं है, अल्पकाल के लिए मिलता है।
साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं। साइंसेर माध्यम बहुत किछु आविष्कार करे देखाय ना, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। ए समय 84 जन्म पूरा हইলো, सबाई पतित হয়ে গেছে। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। पतित থেকে पावन কেউ বানাইতে পারবে না, সে কাজটা শুরু বাবাই করতে পারবে। एक का ही गायन है, एक জন্যই বলে सर्व का पतित पावन, সবাইকে পতিত থেকে পাवन করতে পারবে। सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोत्तम लीडर। मनुष्य अपने को सर्वोत्तम लीडर कहलाते हैं, सबार থেকে श्रेष्ठ लीडर। अब सब मानो उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला एक ही बाप गाया जाता है। सबार उपरे दया एक जने करते पारबे, जिसको रहम दिल बिलिसफुल कहते हैं। बाबा हইল रहम दिल, सबार उपरे दया करें, बिलिसफुल। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? যারা নিজের উপরেই দয়া করতে পারে না, তারা অন্যের উপরে কিভাবে দয়া করবে? अल काल की नाम कितने बड़े बड़े रख दिया है, नाम को तो बड़ो बड़ो रखছে। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ हेल्थ वेल्थ बनाने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। ওখানে বাবাকে স্মরণ করতে লাগে না, যখন মানুষ দুঃখী হয় তখন বাবাকে স্মরণ করে। तुम्हारे 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाते हैं। तुम ऐसे राज करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान और दुखी पतित बन गए। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले माफी बरसा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर बरसा लेते, श्रीमत पर चलते, श्रीमत है ही बाप दादा की मत। उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? केउ श्रीमत दीते पारबे ना, श्रीमत बाप दादार मत। बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। কোনটা গুণ? पतित থেকে पावन करा गुण कारो मध्य नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप के पास है। पतित থেকে पावनो बनाइलो, साथो साथो विश्वर मालिको बनाइलो, সেই যুক্তিগুলা বাবার কাছে আছে। सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगी। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। बहुत আমরা पतित মানে एकदम दुखी पतित হয়ে গেছি। आजकल तो फिर खुद को शिवहम तत्वहम कह देते हैं, हमरे भगवान बोले गए। यह तो फिर कहते हैं तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा।
आत्मा सो परमात्मा। तो কাউকে বলে দেয় কি আপনিই ভগবানের রূপ, তারপরে বলল আত্মাই परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा को याद दिलानी पड़े, सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है, प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार है, शंकर साकार है। शिव परमात्मा है, शंकर देवात्मा। शिव निराकार, शंकर साकार। शिव परमात्मा, शंकर হইলে देवात्मा। तो দুজনের মধ্যে তো তফাৎ হয়ে গেল। श्री कृष्ण को तो फिर साकार में है, श्री कृष्ण तो फिर साकार में है। श्री कृष्ण साकार, श्री कृष्ण तो साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। कृष्ण साथे राधेता देखानो ठीक ठाक, तो सिद्ध हो जाए यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। মানে রাধে কৃষ্ণ যদি একসাথে থাকে তখন বুঝাইতে সুবিধা হবে কি রাধে কৃষ্ণই 25 বছর পরে লক্ষ্মী নারায়ণ হয়ে যান। कृष्ण को द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है। द्वापर जुगे गीता सुनाइलो तखन तारपरे तो आसे गेल कलिजुग, এই জন্য দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ কোনো গীতা শোনাইতে আসেন না। কৃষ্ণ তো সতী যুগে ছিলেন, কিন্তু ভক্তি মার্গে কৃষ্ণকে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে। पतित होते ही हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। कलिजुगे शेष और सती जुगे शुरू, यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं, सृष्टि आदि मध्य अंत। এই তিন কালের জ্ঞানটা শিব বাবা আমাদেরকে শুনাইলেন, কৃষ্ণ শুনাইতে পারবেন না। উনি তো আদিতে ছিলেন, মানে সতী যুগে ছিলেন। মধ্যতে কি হইল ওটাও বলতে পারবেন না, অন্তিম সময়ে কি হইল সেও উনি বলতে পারবেন না। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा, देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। सती जुगे प्रिंस प्रिंसेजो पढ़ते जाबे। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, माने राजा रानीदेर कॉलेज आलादा छिलो। अभी मिक्स हो गए हैं, सब अमीर गरीब एक साथे पढ़ते पारे, किन्तु কিছুদিন আগেও এরকম ছিল যে রাজাদের ছেলেমেয়েরা অন্য জায়গা পড়তে যেত, মানে ওখানে সাধারণ পাবলিক যাইতে পারবে না। कृष्ण प्रिंस था और फिर प्रिंस प्रिंसेज होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। इकट्ठे माना एक साथ ही पढ़ते छिलो। वहाँ तो है ही वाइसलेस दुनिया, निर्विकारी दुनिया, कोनो विकारेर कोनो भावनाई चिंता छिलो ना। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है, मनुष्य सर्व के सद्गति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज में और कोई धर्म नहीं था। যখন দেবতারা রাজ করতে ছিল সেই সময় কোনো অন্য ধর্ম ছিল না। वह तो आएंगे ही आधे में, माना যে কেউ আসবে আধাতে। আধা মানে সতীযুগ ত্রেতাযুগ যখন পার হয়ে যাবে তখন অর্ধেক সময় পার হয়ে গেল, তখন মাঝখানে আসবে, সে সময় হইল দ্বাপর যুগ। तो सतयुग में हो कैसे सकते, वह है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग। वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। निवृत्ति मार्गेर लोग राजयोग के कखनो बुझते पारबे ना।
यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग छिलो। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवानोवाच, भगवान बोलें, मामेकम याद करो, আমাকে স্মরণ करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधियों से दिल निकल गया, दिल लग गया तो तकदीर फूट जाएगी। মানে পুরনো দুনিয়া আর পুরনো দুনিয়ার মিত্র সম্বন্ধীর সাথে যদি অন্তর মিলে গেল তখন কি হবে? তকদির খারাপ হয়ে যাবে, ভাগ্যটা নষ্ট করবে ফেলবো। बहुतों की तकदीर फूट जाती है, অনেকের ভাগ্য খারাপ হয়ে যায়। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा। কোনো এরকম কর্ম হয়েছে যেই কর্ম খারাপ কর্ম সেই পিছাড়ি মানে অন্তিম সময়ে সম্মুখ হয়ে যাবে। साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार होवे। कोई बच्चे छिपाते बहुत हैं, इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाबा को सुनाने से आधा सजा छूट जाएंगी। এই জন্মে কোনো ভুল কাজ হয়েছে সে বাবাকে শুনিয়ে দিলে অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে। অর্ধেক কর্মটার মানে পাপ কর্মের মাফ হয়ে যাবে। परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं, लज्जा पाए এই জন্য सुनाए ना। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यदि बोले दिवे तो छूटे जावे মানে মুক্তি পেয়ে যাবে। यह अविनाशी सर्जन है, बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूट कैसे पाएंगे। মানে যদি ডাক্তারকে নিজের অসুখটা বলবে না তো ডাক্তার কিভাবে ওষুধ দিবে। कोई भी विकर्म किया है तो बताओ, आधा माफ हो जाएगा, आधे माफ हो जाए। न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, ना बोलले की থাকবে ওটা বাড়তেই যাবে। जास्ती फंस जाएंगे, आरो बेशी फेंसे जाবে। फिर तकदीर खत्म हो जाएगी, भाग्यटा नष्ट करे फेलबे। बदनसीबी आ जाएगी, बदनसीबी माना तकदीरटा खराब हो जाए। बाप कहते हैं देह अभिमान से संबंध न रखो, तुमको मामेकम याद करना है। মানে দেহ আর দেহের সম্বন্ধ সাথে কোনো সম্বন্ধ রাখতে নাই, हमेशा मामेकम याद करते रहो और कोई गंदा काम नहीं होगा। বাবার স্মরণে থাকলে কোনো খারাপ কাজ হবে না। यह धर्मराज भी है, बाबार पाठ धर्मराजेरो पाठ होवे, उसमें भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसे सजा कोई को नहीं मिलेगी। माने अनेक पनिशमेंट हो जाए। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, সবার समय हिसाब निकास चुक्त करार समय। सब पतित है, पापों का दंड जरूर मिलना है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है वैसे एक सेकंड में सजा की भाषणा ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजा खाते ही रहता हूँ। মানে এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি বলা গেছে, এইভাবে এক সেকেন্ডের মধ্যে এমন পানিশমেন্ট পাবে যে মনে করবে যে অনেক জন্ম থেকে আমি কষ্ট পাচ্ছি। यह बड़ी सूक्ष्म मिशनरी है, सबके कयामत का समय है। सजाओं के सजा भोगनी तो जरूर है, पनिशमेंट तो होबे। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं, निजे हिसाब निकास चुक्त करे जावे।
क्लियर है। बाबा ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं, कारो मध्य ওই শক্তিটা নয়। 63 जन्म पाप करते करते अभी हमारे पापों का घड़ा आकर भरा है। पापेर घड़ा, घड़ा माने कलसी भर्ती হয়ে গেছে, ভরে গেছে ওখানে। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, मायार ग्रहण लगे আছে। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है ना। सर्वगुण संपन्न थे, फिर ग्रहण तुम पर लगी। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। ग्रहणों आमादेर ऊपरे लागलो, ज्ञानटाओ आमरा निलाम। बाप कहते हैं बाप कहते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे। कैसा सीधा बात है, एकदम सीधा सीधी, कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे। আমরা এই দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম। फिर पतित होने के कारण হিন্দু कहला दिए। যখন আমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেল তখন নিজেকে হিন্দু বলে দিল। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं, কেউ হিন্দু ধর্মকে স্থাপন করে নাই। मठ पद करोड़ मठ पद को डिनास्टी नहीं कहेंगे। मठ पद तो अनेक হয়ে গেছে না, ताकि कोनो राज्य बोला जावे ना। डिनास्टी राजाओं की होती है, राज्य राजादेर है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसी राजाई चलती है। राजघरानाते किभाबे राज्य चलबे से बाबा बोलें। यह भी जरूर है, पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अपने धर्मों के चित्र को ही पूजते हैं। निजेर धर्मेर जेगुला छवि, এই ছবিগুলাকে মানুষ পূজা করছে। सिर्फ यह भूल गए हैं, একটা কথা ভুলে গেছে, हम ही पूज्य देवी देवता थे, আমরাই দেবী দেবতা ছিলাম, এই কথাটা মানুষ ভুলে গেছে। अब पुजारी बने हैं, আমরা পূজ্য ছিলাম আর আমরাই पुजारी হয়ে गেলাম। अभी तुम समझते हो बाबा ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने को अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। निजेर छवि राखे निजेई पूजा कर लो। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, जे पूज्य छिलो सेई पुजारी হয়ে গেল। यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। যারা ভারতীয় আর এ ভারতের জন্য বলা হচ্ছে। भारत भी बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनने के लिए बाकी सब हिसाब किताब चुक्त कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है, इस समय तुमको 3 बाप है। एक शिव बाबा, दूसरा है लौकिक बाप, और यह क्या है, यह है अलौकिक बाप, प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। যারা বাবার জ্ঞান পায় নাই তাদের 2 জন পিতা আর আমাদের 3 জন পিতা, লৌকিক, পারলৌকিক আর অলৌকিক। अलौकिक पिता হইলেন प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। लौकिक और परलौकिक, अज्ञान काले लौकिक और परलौकिक छिलेन, ओखाने आमादेर लौकिक परलौकिक और अलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक पिता होते हैं, परलौकिक बाप को जानते ही नहीं, वहाँ तो है ही सुख, फिर परलौकिक बाप को याद क्यों करें।
দুঃখে সুমিরন সব করে। যখন দুঃখে পড়ে তখন সবাই সিমরন করা মানে স্মরণ করা শুরু করে দেয়। এই জন্য বলছে দুঃখে সুমিরন সব করে, সুখমে করে না কই। যে সুখমে সুমিরন করে তো দুঃখ কাহে কো হয়। যদি মানুষ সুখে যদি বাবাকে স্মরণ করে তো তার সামনে দুঃখ কেন আসবে, কিন্তু যখন দুঃখ হয় তখন স্মরণ করা শুরু করে। यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं, यह भी समझने की बात है। वहाँ देही अभिमानी रहते हैं। सती जुगे আমরা देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी ছিলাম। फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक और सदगुरु है। एक जने पिता, बाप, टीचर और सदगुरु। यह उसकी महिमा समझानी पड़े। वो महिमाटा हইল शिव बाबा। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गंवाए। সতযুগ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সব কিছু ছিল, তারপরে আমরা কি করলাম, সব কিছু হারিয়ে ফেললাম। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है। कोई सन्यासी कैसे कोई सद्गति कैसे दे सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है। फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाता है। शास्त्र को था तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सब मिष्टि मिष्टि कथा बाबा আমাদেরকে सुनाচ্ছেন। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। नाटक पूरा होबे, সবাই নাটক শেষের পথে যখন আসে তখন সবাই হাজির হওয়া শুরু করে দেয়। এই জন্য বাবা বলছেন নাটক শেষের পথে, তখন যে নাটকের ক্রিয়েটর সেও কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চে। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्या जीव का पूरा डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी रीति যুক্তি बताते हैं। বাবা বাবাকে স্মরণ করার জন্য, এই হিস্ট্রি জিওগ্রাফিকে মনে রাখার জন্য বাবা খুব সুন্দর একটা যুক্তি বলে দিলেন। যে যুক্তিটা হইল কি দেখে নিচ্ছি। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। এই পুরনো দুনিয়াতে থাকে পুরুষার্থ করতে হবে নতুন দুনিয়ার জন্য। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। এই পুরনো দুনিয়া আর পুরনো শরীর সাথে কোনো অন্তরে মিল করতে হবে না, সব থেকে উপর উপর। नसीब बद नहीं बनाना है, নিজের ভাগ্যটা নষ্ট করতে নাই। नंबर दूसरा है आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে আর পরমাত্মা, এই দুটা কথা মনে রাখতে হবে।
इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। হিসাব নিকাশ চুক্ত হচ্ছে, এর মধ্যে বাবার সাথে কোনো কিছু লুকানো যাবে না, সব কিছু গোপন রাখা যাবে না। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। बाबा হইলেন সার্জন, সার্জনটিকে জিজ্ঞাসা করেই সব কিছু করতে হবে। वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अतीन्द्रिय सुख में स्वराज अधिकारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अतीन्द्रिय सुख समानधारी भव। अतीन्द्रिय सुखेर अनुभव के करबे जे समाने थाकबे। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरण स्वतः आती है। यदि सूर्येर दिके मुख करे राखबेन तो सूर्येर आलोटा तो मुखेर उपरे पड़बे ना। ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरण स्वतः ही अनुभव कराती है। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व सोमान की झलक दिखाई देती है। वर्तमानों देखबे, भविष्यटाও देखबे। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि यह हमारा अंतिम घड़ी है। এটা আমাদের अंतिम घड़ी, अंतिम समय। किसी भी घड़ी इस शरीर का विनाश हो सकता है। কোনো ঘড়ি না কোনো একটা সময় কখনো এই শরীর বিনাশ হইতে পারে। इसीलिए इसे सदा বুদ্ধিমান बन सूर्य के सम्मुख रहो। এটা কোনো সময় শেষ হয়ে যাবে, এই জন্য বাবা বললেন যে समझदार হয়ে জ্ঞান सूर्यर সম্মুখে থাকো। अतीन्द्रिय सुख व सोमान की स्थिति में रहना है। स्लोगन, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेले के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेले के पहाड़ को क्रॉस करना है। माना सब समय यदि उड़ती कला मन सब समय ऊपरे थाके तखन की होबे, এই সংসারের ঝামেলা পাহাড় को भी क्रॉस करना है, মানে পাহাড়কেও আমরা টপকাই যেতে পারবো। আচ্ছা, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।